Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students of class 8. I am your English teacher, Mrs. Saja Salim. How are you all? I hope all are you fine. Okay. In our previous class, we had done exercises according to the. I explained you these different types of noun. Then we done these exercises. I had explained you. After then, I told you that you have to done these exercises in your notebook or your copies. Okay, these exercises. Now your next topic is. It is also related to the noun. इस टॉपिक में आपको बताना है नॉमिनलाइजेशन, इसका इस टॉपिक की आपकी हेडिंग है और इसका मतलब है कि नाउन कैन बी मेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन टू वेज। दो तरीक़ों से हम नाउन को मज़ीद उसके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं और वो होते हैं मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब, सुफिक्सेस सच एज URE, TION, ING, SION, MENT, ANCE can be added to verbs to change them into noun. These are the words which you have to put in verb. आप उसको verb में add कर सकते हैं और उससे एक नया word बना सकते हैं और इनको कहते हैं suffixes. When we add any new word after the verb, it is called suffixes. ठीक है, वर्ब के बाद हम जो एक फर्दरली एक चीज़ ऐड करते हैं उसे suffixes कहा जाता है. There are some more examples like fail, failure. फेल के साथ आपने URE लगा दिया है तो वो फेलियर बन गया है. कंबाइन, कॉम्बिनेशन, राइट, राइटिंग. ठीक है, ये एक वर्ब है, वर्ब से आप उसे नाउन बना देते हैं. इसी तरह है मेकिंग नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव, सुफिक्सेस सच एज NE, SS, ANCE, Y, ITY, ENCE, TH can be added to adjectives to change them into nouns. ये adjectives हैं जिनके साथ ये suffixes ऐड करके आप उन्हें noun जो है वो बना सकते हैं. इसके examples आपको दिए हुए हैं. happy, happiness, ignore, ignorant, ignorance, honest, honesty, able, ability, silent, silence, wide, width और strong, strength. ठीक है. Now we will going to the exercise E, and the exercise E is there are some adjectives. Change the following words into noun by adding suffixes. अब ये जो words आपको given हैं इनके साथ आपने suitable suffix ऐड करना है. ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर आपको given है आप वही लगाएं, उससे हट के भी जो जिस वर्ड के साथ suitable है वो आपको suffix इसके साथ लगाना है. नंबर 1 है डिफ़िकल्ट. इसको आप क्या बना देंगे? यस, डिफ़िकल्टी. एनेक्सियस, एनेक्सियसली. रेफर, रेफरेंस. रफ, रफली. जज, जजमेंट. रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सीरियस, सीरियसली. परफॉर्म, परफॉर्मेंस. मॉडेस्ट, मॉडेस्टली. डैनी, डैनियस. Okay, now on page number 5. Here is your topic is countable and uncountable noun. As you know कि ये आपने नाम से ही आपको बता रहा है. countable means जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और uncountable वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. In book 7 you learn about countable and uncountable nouns. Generally, we use an before a countable noun, but in some cases
we also use some before an uncountable noun. We generally use some or little, ये भी हम यूज करते हैं उनसे पहले, ठीक है. There are some examples. A ton of plastic, 2 oxygen cylinders, 4 sacks of rice, 2 buckets of water. Okay, these are the examples. ये examples इसलिए आपको दिए हैं कि जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अ टन ऑफ प्लास्टिक्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं. ऑक्सीजन अनकाउंटेबल है, लेकिन आप उसे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फॉर्म में आप उसको काउंट कर सकते हैं. ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है. इसी तरह सैक्स ऑफ राइस यानी कि चावलों का थैला या वो जिस बोरी में चावल में होते हैं, आप चावल काउंट नहीं कर सकते, लेकिन चावल के बोरियां या उसके थैले जो हैं उनको काउंट कर सकते हैं. ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. बकेट ऑफ वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल बट buckets of water are countable, like 2 buckets of water, 2 पानी की बाल्टियां, ठीक है. Now the exercise, read the following sentences, identify whether the underlined nouns are countable or uncountable. For countable you have to write C, and for uncountable you have to write UC, uncountable, right? Number 1 is the children are playing in the garden. Underline क्या है इसमें? Yes, children. तो children को हम count कर सकते हैं. Yes, we can count children. So here you have to write C. C means countable. I don't like milk. Underlined word is milk. So milk is countable or uncountable? Reply me. Yes, milk is uncountable. So we have to write here UC, uncountable. I prefer tea. Tea is uncountable. So you have to write here UC. Scientist. Okay, scientist, साइंसदान को कहते हैं, तो scientists are countable, so we write here C. My mother uses butter to prepare cake, so the butter is underlined word and butter is uncountable. There are lot of windows in our classroom. Underlined word is window and window is countable. We need some glue to fix this vase. Glue is uncountable, so we have to write here UC. The waiters countable. My father drinks 2 big glasses of water every morning. Glasses आपका अंडरलाइन वर्ड है और glasses जो है वो countable हैं, so we have to write here C. Number 10, the bread my mother bakes is delicious. Bread is the underlined word and you have to write here C. Okay, you have to do this exercise in your copy. First of all, you have to do this exercise E. You have to write first of all you have to write the question. Then you have to make 2 columns. In one column you write these given words, and in the second column you have to write the nouns which you will make after adding the suffixes. Okay, after then you have to write the question of exercise F, and you have to write exercise E, exercise F, and page number also, right? Then you have to write this question F, and then you will do this exercise same as
the book. You have to do this exercise in your copies, same as in the book. Like fill in the blanks, आप इनको कॉपी करेंगे अपनी कॉपी में, एंड देन यू इसके सामने इसी तरह से आप डैश बनाएंगे और उसके ऊपर C और UC लिखेंगे. ऑल राइट, अंडरस्टैंड? ठीक है, आपको समझ आ गई कि एक्सरसाइज आपको कॉपी में किस तरह करनी है. ठीक है. Okay student, now our next topic is pronoun. Okay, do you know about the pronoun? I think कि आपको मालूम होगा, बिकॉज ये बहुत अर्ली क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. बहुत इजी, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एंड यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिफोर दिस क्लास. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउन वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउन. ठीक है, प्रोनाउन को समझने के लिए नाउन का समझना बहुत ज़रूरी होता है, और अभी आपकी प्रीवियस क्लास में आपको नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है. ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन और अ नाउन फ्रेज. ठीक है, नाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कॉल द नेम ऑफ एनीथिंग. कोई भी नाम हम किसी चीज का कहते हैं तो हम उसको नाउन कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द नाउन फॉर एनीथिंग, एंड इफ वी डोंट वांट टू यूज द नाउन देन वी हैव टू यूज प्रोनाउन. ओके, प्राउन इंस्टीड आप देख रहे हैं कि इंस्टीड का मतलब है किसी चीज की जगह पे उसको रिप्लेस करना या इन प्लेस ऑफ नाउन. राइट, लेट्स सपोज, इसके एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं. लेट्स सपोज वी आर राइटिंग एन एसे ऑन कायदे आजम. लेट्स सपोज, तो वो ऐसे हमारा किस तरह से होगा? डेफिनेटली कायदे आजम इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन ना. कायदे आजम, कायदे आजम इज अवर, कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. कायदे आजम इज द ग्रेट लीडर. कायदे आजम वॉज बॉर्न इन कराची. कायदे आजम वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. मतलब हम अगेन एंड अगेन कायदे आजम हम ऐसा कहेंगे या हम इसको ऐसा लिखेंगे? यस, द आंसर शुड बी नो. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? Anybody can tell me what to do if I don't want to say again Qaid-e Azam, then what to do? Yes, if we don't write or call nouns again and again, so we have to use pronoun instead of the noun. हमें noun नहीं कहना है बार बार, तो हमें उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करना है वो प्रोनाउन है. और कायदे आजम का प्रोनाउन क्या होगा? ही. डेफिनेटली जब आप कहेंगे कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आप क्या कहना शुरू कर देंगे या क्या लिखना शुरू कर देंगे? ही वॉज द ग्रेट लीडर, ही वॉज बॉर्न इन कराची. आप ही कह के बात करेंगे. सो ही इज द प्रोनाउन ऑफ नाउन फॉर मेल. और अगर आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम उनका नाम यूज करेंगे. आफ्टर देन यू विल यूज प्रोनाउन, एंड द प्रोनाउन फॉर फीमेल इज शी. सो द प्रोनाउन्स आर ही, शी, इट एंड दे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. As you know, pronouns can be classified into the following categories. ये आपको कैटेगरीज बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ से अगर लें, देखें, व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, ठीक है, बिटवीन बोथ ऑफ देम I want to say that two persons are talking. One is mean to say who is talking. Okay, who is talking,
इज द फर्स्ट पर्सन एंड हु इज लिसनिंग इज द सेकेंड पर्सन। आपको बात समझ में आई? मीन टू से कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकेंड पर्सन हैं, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आई इज अ फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन एंड ही एंड शी या किसी का नाम है तो वो थर्ड पर्सन है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए आई और उसका प्लूरल है वी, यानी मैं या हम। अब उसका सेकंड पर्सन आप देखिए यू, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है। हम एक शख्स के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं। नाउ फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, और इनका प्लूरल है दे। हिम, हर, इट के लिए हम दैम यूज करते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव पर्सन्स, यानी आई हम यूज करते हैं और किसी जगह पे हम इसको मी भी यूज करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। और इसी तरह वी जो है वो अस में हो जाता है चेंज, यू ही रहता है। एंड हिम, हर और इट के लिए हम दैम यूज करते हैं एज ए थर्ड पर्सन, राइट? These are the categories of pronoun, and it we use for the non-living things and animals. ये जो it है, he is used for masculine, she is used for feminine, and it used for non-living things or animals. And they we use when we are talking about more than one or two persons, then we use they, right? I think ये नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप। ठीक है, यू कैन कम इन ग्रुप एंड आस्क मी if you have any confusion or any question. ठीक है, सो ये भी आप इसका प्रोनाउन की हेडिंग दे के आप इसका टाइटल पेज बना के और आपने इसका काम करना है। आपने ये एक लाइन जो है इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है ये पहले आप लिखेंगे, ये टॉप से आप इसकी हेडिंग देंगे। देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन एंड आफ्टर देन काइंड ऑफ प्रोनाउंस की आप हेडिंग देंगे। इसके नीचे जो ये लाइन लिखी हुई है ये आप लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस की हेडिंग देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप कॉलम्स बनाएंगे, ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपीज सेम एज गिवन इन द बुक। और आप इसका पेज नंबर भी मेंशन करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है और ये आपका गिवन टास्क है, ये आपका गिवन वर्क है जो आपने घर पे करना है और अपनी कॉपीज में इसको कंप्लीट करना है। अगर आपको काम करने का तरीका भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने इसको कॉपी में किस तरह से करना है, तो यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप। और प्रीवियस काम भी सबका कंप्लीट होना चाहिए, किसी का काम पेंडिंग में नहीं जाना चाहिए, इनकम्प्लीट काम किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नीट एंड क्लीन काम आपका चाहिए मुझे। अब इसमें आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको जज करने के लिए आप कोई बुक पढ़ें, कोई ऐसे आप पढ़ें। आप देखिए कि उसकी स्टार्टिंग में आपको नाम मिलेगा और उसके बाद ही और शी यूज हो रहा होगा या इट यूज हो रहा होगा, क्योंकि हम एक मरतबा नाउन यूज करते हैं और अगेन एंड अगेन अगर बार बार किसी का नाम किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी ऐसे में अगर आ रहा है तो फिर हम उसे जो है प्रोनाउन हम उसकी जगह पे यूज करते हैं। अगेन एंड अगेन जो है हम नाउन को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू लीव द क्लास for next class. Till then, Allah Hafiz for the next class. Take care and Allah Hafiz.